Velocity time graph is another important graph in studying motion. Again, this is graph between velocity and time, दो quantities के दरमियान, and you keep independent quantity along x-axis and a dependent one along y-axis. अब वही हम दोबारा स्टडी करेंगे कि what are the different shapes of the graph mean in this plane, velocity time plane. सबसे पहली बात, let's consider if this graph is a straight line. इसका क्या मतलब है? अब उसके लिए उसी तरह से first you have to look what the slope of the graph tells us. Slope is rise over run, velocity over time, which is acceleration. Now this is a velocity time graph, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो velocity per unit time is acceleration. Slope acceleration बताती है. अब जरा गौर करिएगा, we move to first possible shape of the graph which is diagonally straight line. इसका मतलब है this has a constant slope. Constant slope का मतलब slope is acceleration, that means it's a constant acceleration. अब यहां पे जरा आपने चीजों को रिलेट करना है बड़े ध्यान से. Constant acceleration का मतलब क्या होता है? What does it mean? यानी सबसे पहली चीज हमें ये समझ आ गई कि this shape 1 means that the slope is constant, acceleration is constant मतलब velocity is uniformly increasing. ये ध्यान आपने याद रखना है कि velocity is uniformly increasing. Constant acceleration का मतलब होता है velocity is uniformly increasing. यानी हर सेकंड में जितना भी acceleration है maybe 2 meters per second square, तो after every second velocity में 2 meter per second square का increase आ जाता है. Then what if the graph is something like this? It's a curve जो कि इस तरह से show हो रही है. This is graph number 2. फिर से वही बात, slope is variable, acceleration is variable means velocity is variable. अब इसका मतलब क्या है जरा गौर से समझिएगा. स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है. स्लोप कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, बट स्टिल स्लोप इज पॉजिटिव, यानी आप ऊपर जा रहे हो. तो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. इन द ग्राफ 2 वी सी दैट स्लोप इज पॉजिटिव meaning acceleration is positive. Acceleration is positive मतलब velocity is still increasing, लेकिन slope कम हो रही है मतलब acceleration कम हो रहा है. इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि a body started from maybe at the moment when you found its instantaneous velocity that was 100 meters per second square. After a second it was 180 meters per second. After another second it is 210 meters per second. After another second it's 215 meters per second. So you see that pattern कि velocity बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन पहले सेकंड में there was a large jump 100 to 180. उसके बाद 180 to 210 सिर्फ 30 का जंप आया. उसके बाद 30 से वो 210 से 215 सिर्फ 5 का जंप आया. मतलब वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने का जो इंटरवल है वो छोटा हो गया है. इसलिए हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज स्टिल पॉजिटिव लेकिन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग बिकॉज द स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड स्लोप इज एक्सेलरेशन. नंबर 2, व्हाट डज दिस ग्राफ मीन्स? इस तरह से अब क्योंकि स्लोप वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है क्योंकि स्लोप की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और स्लोप इज एक्सेलरेशन. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि स्लोप इज स्टिल पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज स्टिल पॉजिटिव, आप ऊपर जा रहे हो. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से बनेगी कि सबसे पहले इट हैड फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स पर सेकेंड, उसके बाद 110, उसके बाद 140, फिर 190. इस तरह से पहले आपने देखा यहां पे there was only a jump of 10 meters per second, then there was 30 meters per second, then there was
50 meters per second jump. So velocity is still increasing because in the graph 3 acceleration is still positive, velocity is still increasing. लेकिन क्योंकि acceleration बढ़ रहा है तो interval of the change is increasing. velocity बढ़ रही है लेकिन अब वो बड़े बड़े interval से बढ़ रही है और वो interval with every second बढ़ता जा रहा है. इसी तरह से what if आपके पास ग्राफ इस तरह से आ जाता है. अब इसे जरा गौर से समझिएगा. ये है आपका ग्राफ नंबर 4. यहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप डाउनवर्ड है. नेगेटिव स्लोप का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. मैं बहुत आपको डिटेल से ये समझा रहा हूं, इसलिए कीप योर ऑल माइंड्स ओपन इसे समझते हुए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. Acceleration का मतलब होता है change in velocity. That change can either be in the form of increasing velocity or decreasing velocity, क्योंकि change चाहिए वो बढ़े या कम हो. अगर acceleration negative है तो वो change decreasing velocity की फॉर्म में आता है. लेकिन इस slope का मतलब क्या है कि slope पहले ज्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. मतलब acceleration negative है लेकिन उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले लेट्स से उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर्स पर सेकेंड. 100 के बाद वो हो गई 50 मीटर्स पर सेकेंड, देन वो हो गई 40 मीटर्स पर सेकेंड, देन वो हो गई 37 मीटर्स पर सेकेंड. तो आप देखो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है. लेकिन पहले देयर वाज अ जंप ऑफ 50, देन देयर वाज अ जंप ऑफ 10, देन देयर इज जंप ऑफ 3. यानी वेलोसिटी स्टिल कम हो रही है बट विद एवरी पासिंग टाइम उसके कम होने का जो इंटरवल है वो छोटा होता जा रहा है. दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन लेकिन उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है. सिमिलरली व्हाट इफ अगर आपके पास एक ग्राफ इस तरह से आ जाए, यानी दिस इज अ ग्राफ नंबर 5, ये वाला ग्राफ, नेगेटिव स्लोप मूविंग डाउनवर्ड्स. नेगेटिव स्लोप मींस negative acceleration. Negative acceleration means velocity should decrease. लेकिन आप यहां देखो उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है. नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी वाज 100 मीटर्स पर सेकेंड, 100 से वो हुई 90, 90 से वो हुई 70, 70 से वो हुई 30, 30 से वो हुई 2 मीटर्स पर सेकेंड, एंड देन बॉडी रुक गई. फॉर एग्जाम्पल, तो पहले देयर वाज अ जंप ऑफ ओनली 10 मीटर्स पर सेकेंड, then 20, then 40, then यहां पे 28. So sorry, yeah, 30 onwards ये छोटा हो गया आपके पास. This last step we can't write it over here. आप 30 तक उसे assume करिए. ठीक है, तो आपने देखा कि वेलोसिटी कम हो रही है. पहले सेकंड में वो 10 मीटर्स कम हुई, फिर 20 मीटर्स कम हुई, फिर 40 मीटर्स कम हुई. तो इसका मतलब ये था कि velocity was decreasing because the acceleration was negative, because the slope was negative. लेकिन उसकी जो डिक्रीज होने का जो रेशियो है, डिक्रीज होने का जो इंटरवल है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है क्योंकि नेगेटिव स्लोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है. इज दैट क्लियर? एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है स्लोप इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, मतलब स्लोप इज जीरो. हर स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो तो दिस ग्राफ नंबर 6, दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो ये 6 तरह के ग्राफ, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड आएगा तो इट वॉन्ट बी डिफरेंट दैन दिस शेप. अब आफ्टर ऑल दिस स्लोप थिंग, हमारे पास देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट अबाउट द एरिया अंडर ग्राफ? जब आप एरिया अंडर ग्राफ की बात करते हो, इसका मतलब होता है कि वी मल्टीप्लाई द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स. जब मल्टीप्लाई करते हो वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज कॉल्ड v into t, that is distance. So area under graph हमें बताता है distance traveled by the body. तो आप यहाँ पे
कोई भी अगर आपको ग्राफ गिवन हो उसके अंडर एरिया बिटवीन टाइम एक्सिस एंड दैट लाइन आप एरिया कैलकुलेट करोगे, दैट एरिया विल एक्चुअली गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी सो फार. सो इसका मतलब ये कि सिग्निफिकेंस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज दैट slope of the velocity time graph is equal to the average acceleration of the body, and area under the velocity time graph is equal to the distance covered by the body by that time. So hope I made the idea of this velocity time graph clear in this lecture, which was our purpose कि आप उस velocity time graph के through distance और acceleration find कर सकते हो किसी भी body का.